Good morning, class. Today we will discuss the chapter of civics growing up as boys and girls. As yesterday I had given the introduction about this chapter, so particularly in this chapter we will discuss the behavior of the girl and boys and how they bring up in the society and their you can say responsibilities and what kind of behavior they adopt and how they uh, behave in the society in their own life. So this is the introduction. So let's begin with the introduction. What the chapter will give us to study. So being a boy or a girl as a important part of one's identity, मतलब हमारा जो भी आइडेंटिटी है, वी आर रिकग्नाइज बाय अवर जेंडर दैट वी आर मेल फीमेल बॉय गर्ल मेन और women like all. So the society we grow up in teaches us with what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do, and we often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. Means if we will discuss in the chapter, we will see that in all of the society the same things are there. But do we all societies look up and girls in the same way? We will try to answer these questions in this chapter, and we will also look at how different role assigned to the boys and girls prepare for their future role as men and women. And we will learn that the most societies value men and women differently. The roles of women plays and and work they do are usually valued less than the roles of men play and the work they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. So, this was the introduction. Now, firstly, we will discuss the two stories differently. One is of India, another is of Samoa. Let's begin. What the stories tell us. So, Samoan Island is the part of the group of islands that southern part of Pacific Ocean. Pacific Ocean, because you know it, where is Pacific Ocean? And it is the largest ocean, and in that particularly one of the island is there where in 1920s, according to the research reports to Samoan society, children did not go to school. मतलब पुअर लोग हैं वो स्कूल नहीं जाते वहाँ के बच्चे, एंड दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट्स, मतलब अपने ही घर में अपने बड़ों से ही वो सारी हैबिट्स जो हैं सीखते हैं. फिशिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड. सर्वाइविंग के लिए फिशिंग मेन एक्टिविटी है. यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन, मतलब वो अपना जो काम करते हैं उनका एक तरीके से यही काम है. वैसे तो एक्सपीडिशन का मतलब है पर्पसफुली डू सम टास्क और सम कैंपेन रन आउट. सो मीन्स दे डू such kind of work, and but they learn these things at different points of their childhood. जो भी वो सीखते हैं उनका different stages are there to learn the activities in the family. एज सुन एज द बेबीज कुड वॉक, अब आपको बिल्कुल फर्स्ट स्टेज से बता रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, चलना सीखता है, तो क्या करते हैं वो फर्स्ट स्टेज क्या है उनकी, देयर मदर्स और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक आफ्टर हिम. मतलब जब चाइल्ड रन करना सीखता है फर्स्ट स्टेज में तो उसको कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, उसको ध्यान देना बंद कर देते हैं. ओल्डर चिल्ड्रन, जो उनके सिबलिंग्स हैं, जो उनसे बड़े हैं, दे विल टेक केयर. एंड अडल्ट and often young as 5 year old, ठीक है, often as young as 5 year old, इतना छोटा होता है कि 5 साल का. एंड took
ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, 5 साल के बच्चे जो हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं, हु इज़ यंगर वन. सो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स. But by the time a boy was about 9 years old, he joined his older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. जैसे ही वो आपको देखें कि थोड़ा सा बड़ा होता है, 9 साल का होता है, तो वो बाहर जाना शुरू करता है, प्लांटिंग सीख लेता है, जो भी उनके काम हैं फॉर सर्वाइवल, कोकोनट प्लांटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा. और डू एरेंड्स फॉर अडल्ट, और अपने बड़े बहन भाइयों के लिए जो भी है वो एरेंड्स का मतलब है सम एक्टिविटीज़, वर्क जो भी है करना शुरू कर देता है. एंड दे वर टीनेजर्स, और जब वो टीनेजर होते हैं तब तक ये करता है. बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको फ्रीडम आ जाती है. आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो द गर्ल ऑल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स, वो भी उनको भी फिश कैचिंग का ही सिखाते हैं. सो वर्कड इन द प्लांटेशन, लर्न हाउ टू वीव बास्केट. अब वो क्या करती हैं, देखिए बॉयज़ का काम डिफरेंट हुआ, अब गर्ल्स क्या करती हैं, वूवन बास्केट, मतलब वो टोकरियाँ बनाना सीखती हैं, कुकिंग सीखती हैं. वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर बॉयज़ वर supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. अब यहाँ पर है कुकिंग वॉज डन स्पेशल कुकिंग, अगर कुकिंग तो करती है लेकिन स्पेशल कुकिंग में क्या होते हैं, द बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क. स्पेशल कुकिंग हो सकता है कोई पार्टीज़ है या फिर मैरिज का है, तो वहाँ पर गर्ल्स उनको हेल्प करती हैं. ये हमारे यहाँ भी सोसाइटी में होता है. इफ़ यू हैव गॉन इन योर विलेज, यू हैव सीन सम कल्चर, तो मेल मेंबर ही खाना बनाते हैं, विमेन क्या करती हैं, चॉपिंग कर रही हैं या पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स का या फिर निडिंग ऑफ फ्लोर, ऐसा काम कर देती हैं. ठीक है, तो हो सकता है उनके अभी ये कल्चर हो. अनदर स्टोरी इज दैट ऑफ ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s. आप वहाँ पर 1920 का स्टोरी देखा, अब 1960s का स्टोरी क्या कहता है. द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन स्मॉल town in Madhya Pradesh in 1916. So, from 6 onwards, the boys and girls went to separate school. पहले छोटे स्कूल में सब एक साथ होते हैं, फिर सेपरेट स्कूल. द गर्ल स्कूल इज सेपरेट एंड द बॉय स्कूल इज सेपरेट. द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉय स्कूल. They had a central courtyard where they played in total skills and मतलब वो एक अच्छे तरीके से सुरक्षा और सेफ्टी के अंदर जो है वहाँ पर खेल सकें. मतलब गर्ल्स का इस तरीके से कोर्टयार्ड में जगह बना दी गई है. ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड मीन्स दे डोंट गो आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्कूल. देन द बॉयज स्कूल हैड no such courtyard, and our playground was just a big space attached to the school. Every evening once school was over, the boy watched as the hundreds of school girls crowded. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, एवरी इवनिंग once the school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded over a narrow street. मतलब वो एक छोटी सी पतली सी गली में उनके स्कूल होते हैं. as these girls walked on the streets, these looked so purposeful, and this was unlike the boys who used the street as place the stand surrounding idle. ठीक है, and to play a very to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home, and this the girl always went in group, perhaps because they also carried fear of being teased or attacked. मतलब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक तरीके से कंजस्टेडनेस ऑफ द बिहेवियर टूवर्ड्स गर्ल्स हैज़ बीन शोन, कि उनको एक तो स्कूल ऐसे दे दिए जाते हैं जो बिल्कुल एक कन्फाइंड हैं और बहुत कम स्पेस है, दे कैन नॉट गो आउटसाइड. अगर वो उन छोटी छोटी पतली पतली गलियों से अपने इस घर से स्कूल को जाते भी हैं तो बहुत ही मतलब उनके लिए एक पर्पसफुल वॉकिंग है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कहीं भी जा सकती हैं. लेकिन बॉयज़ के साथ ऐसा नहीं है. बॉयज़ को आप देखोगे कहीं भी साइकिल चला रहे हैं, कहीं भी खड़े हैं, कहीं भी आइडली टाइम पास कर रहे हैं. लेकिन गर्ल्स के लिए क्या है, सिंपली वो जो उनका जो रास्ता होता है वो घर से स्कूल तक का होता है. मीन्स दे कैन नॉट वॉन्डर, दे कैन नॉट वेस्ट
waste their time ideally anywhere. So girl always, और देखेंगे आप वो ग्रुप्स में होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है द environment is not safe for them, sometimes they are in the fear of you can say touched or if teasing matters, teased or attack over them. तो इसकी वजह से क्या है, sometimes the girls used to go in a simple you can say in the grouping. So after reading these two examples above, we realize that there are many differences, different ways of growing up. मतलब लड़कियों का पालन पोषण कैसे हो रहा है, boys का कैसे. Often we think that there is only one way in which the children grew up, and this is because we are the most familiar with our own experience. If we talk to girls of our family, we will see their childhoods were probably very different from ours. ठीक है. आज उनका जो बचपन है या हमारे जो हम जिस माहौल में पढ़े हैं वो बहुत डिफरेंट है. सो टिल हेयर आई लीव this story on you people, and you stick out some points for discussion, and we will have a debate in online classes after this chapter. Okay, till then, goodbye.